Good evening, ma'am. Good evening, everyone. So today we will have a editorial part. Test is also there. Okay. If time comes, then we will have conversation too. Anyone, any problem? You can say now. You are facing any problem?
Okay, anyone want to say something related to any problem you are facing till now? Just okay, Avinash. Shall I wait for others? Because I wanted to share the link for the test. Okay, 5 minutes more, then we will start. Till then, let's start with the editorial part only. If others are coming, okay. Our editorial for today will be lost opportunity. Okay. Choti, Shan. Yeah, Avinash, I have dropped message in the group. Okay, then I think I should share the link then. So here is the link. Okay. There are total 24 questions. Okay. And each question is of 2 marks. You have to solve it within 20 minutes. Till 11, I am giving you time. Okay. Or you can take 24 minutes from now. Because 24 questions are there, so 24 minutes for each question. Start solving the paper. Okay. Question. I'm here, voice is not receiving.
now, am I audible now? Yes. Yes, Rushikesh. स्टार्ट कब होने वाली मैडम? स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है मैडम? जी जी, जब हो जाए तो सब लोग बस हैंड रेस कर देना। मैडम किधर है वो टेस्ट? चैट, आई एम री शेयरिंग इट वंस अगेन। Sunil, there is a link. I am resharing it. Just open it and solve the paper.
Done, ma'am. Okay, let's wait for others also. Who have completed that? Just raise your hand, whoever completed. Okay. Avinash, okay.
Okay, Ashutosh, Vishal, you also done. Okay, Vikash, let's wait for others. मैक्सिमम लोगों ने सही किया अभी आज. अप्रोक्सीमेटली हर किसी ने करेक्ट आंसर दिया है. Okay, everyone done? 5 minutes more. Anyone who is left?
अक्षय, okay, Sunil, Vikas, you have done. Ashutosh also done. Akshay, are you there? Akshay, अक्षय, हाँ मैम, यस मैम। हो गया आपका? नहीं मैम, एक 5 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 5 थोड़ा मिनट। लेट ज्वाइन हुआ था इसमें। जी जी, कोई नहीं, 5 मिनट और ले लो आप। मैम कंटिन्यू कीजिए मैम, कर लेता हूँ मैं। ओके देन। ओके। ये सबके मार्क्स है यहाँ पे, पहले मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। फिलहाल अभी आशुतोष एंड ऋषिकेश, आप दोनों का नंबर थोड़ा कम है। मैं रीज़न जानना चाहूँगी तब तक कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे फेस कर रहे हैं आप लोग, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। जैसे मैम कुछ सेंटेंस ऐसा हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है। हेलो मैम। जी जी जी, व्हाट जैसे हैपेंड? मैम कुछ सेंटेंस है इसमें ओके, पता नहीं चल पा रहा है। like there is a problem in identifying whether it is noun, pronoun, like that. यस मैम, यस मैम। So you are clear with what is noun? Is it clear with you what is noun and what is pronoun? यस मैम। So what is noun? Just let me know. What is noun? जैसे मैम नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। Very good. And pronoun? प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन। We use pronoun means when we use a word to substitute in place of noun, right? We use it as a नाउन, we use pronoun as a substitute. यस। Okay. So what about Rishikesh? Rishikesh? Rishikesh, are you there? Okay, then let's start the discussion now. यस मैम, यस मैम। जी, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? आइडेंटिफाई करने में आ रही थी या स्टेटमेंट रीडिंग में ही समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रोनाउन पुट करे, कौन सा नाउन पुट करे? बोथ मैम। बोथ, ओके। यस। तो अभी हम कुछ स्टेटमेंट वगैरह का भी अभी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग जो है एक स्टेटमेंट एक तरह से आपके सामने रखा जाएगा और आपको उसमें फिलहाल मैं तो ये कहूँगी एडिटोरियल आप रीड करना शुरू कर दो, उसमें आइडेंटिफाई करो कि आपका नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इन सब में तो थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाएगा आपको। मीन्स जैसे ये एडिटोरियल दिया है तो आप गूगल करो ना, ठीक है? गूगल करो उस वर्ड को, गूगल पे ही दिया रहेगा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है जब आप टाइप करोगे पर्टिकुलर वर्ड को, ठीक है? एंड वहाँ से थोड़ा बहुत आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मतलब नाउन का क्या काम हो रहा है, प्रोनाउन का क्या काम हो रहा है। नाउन हम लोग जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज करते, प्रोनाउन जब हमें रिपीटिशन नहीं करना, मीन्स एक ही पर्सन का नाम बार बार नहीं लेना या एक ही जगह का नाम बार बार नहीं लेना, तभी हम प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट? तो राइट। ये ही, शी, दे, ये सब जो है आपके प्रोनाउन में आएंगे, राइट? तो राइट। तो वो चीजें धीरे धीरे अभी समझ में आएंगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के वजह, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, एंड मैं ये कहूँगी एडिटोरियल के थ्रू आप वर्ड्स जो आप देख रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है कि प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो गूगल कर लो आप, ये प्रोनाउन है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं है।
गूगल कर लोगे आप तो वहाँ से क्लैरिटी भी आ जाएगी। फिर उसके अलग अलग वर्ड्स, जैसे एडजेक्टिव फॉर्म में भी कुछ उसके वर्ड्स दिए रहेंगे, कुछ उसका वर्ब एडवर्ब फॉर्म में भी कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे, तो आपको थोड़ा वहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इसका एडवर्ब ये है, इसका एडजेक्टिव ये है। ओके ओके मैम। जी, फिलहाल अभी हम डिस्कशन करते हैं। जस्ट अ सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन है, which word is a noun in this sentence? The queue was very long so I didn't do it. Okay, तो यहाँ पे आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। नाउन आपका एक तरह से क्या है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम, थिंग का नाम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे राइट मैम। क्यू एक तरह से कुछ बता रहा है, क्यू, राइट, कि मतलब एक नाउन एक तरह से क्या होता है, जिसके बारे में बातचीत भी हो रही है, ये भी कह सकते हैं, राइट। मीन्स सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन नाउन भी एक तरह से क्या है कि वो थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता है कि अच्छा हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, क्यू वॉज वेरी लॉन्ग सो आई डिडंट डू इट। क्यू जो है बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे क्यू आपका क्या है, नाउन है इस सेंटेंस में। ओके, वॉज आपका वर्ब हो जाएगा, राइट। वेरी लॉन्ग यहाँ पे एक तरह से एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, द क्यू, जो जो क्यू है आपका वो नाउन होगा। ठीक है, पहला आप सबका सही है। नो रिस्पॉन्स। यस मैम। यस मैम सही है। विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस? आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है नाउन क्या है। यहाँ से तो आई क्लियर हो गया कि ये तो प्रोनाउन होगा, आई अगर है तो, राइट। और मैम इसमें ब्लू भी नाउन आता है ना? ब्लू भी है, बट वो डिपेंड करता है किस तरीके से यूज कर रहे हैं, राइट। समझ में आया? ब्लू यहाँ पे एक तरह से ब्लू आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव। हाँ राइट। एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव का। यहाँ पे एज ए नाउन की तरह काम, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ओके, शर्ट को बता रहा है कि शर्ट ब्लू कलर का है। ओके, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को एक तरह से मॉडिफाई करता है। तो आपका नाउन यहाँ पे शर्ट हुआ, शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है ना, शर्ट रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ऐसे हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल जैसे ब्लू, अगर स्टार्टिंग में ऐसा होता, ब्लू क्लोथिंग हो सकता था, तो वहां पे ब्लू आपका नाउन हो सकता था। ब्लू क्लोथिंग मीन्स स्टार्टिंग में ही। ओके, ब्लू फिश। बट यहाँ पे एक तरह से आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट, यहाँ पे एक तरह से वो इसको मॉडिफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकंड। सबका हो गया, सॉल्व कर लिया सबने? अक्षय हो गया, ओके। अक्षय का सबसे कम, अक्षय क्या दिक्कत आ रही है अक्षय? नहीं मैम, मेरा लेक्चर मिक्स हुए थे इसलिए ओके ओके, स्कोर मैम एक्चुअली मंडे और बहुत ट्यूसडे ज्यादा के दिन कम नहीं था, था इसलिए ना। मुझे समझ आया कि मतलब मुझे लगा कि कुछ नहीं समझ में आया, ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं मैम, मंडे और ट्यूसडे के दिन क्लास मिस हुए थे मेरे 2 दिन, ओके, इसलिए कर लेता हूँ मैम कवर मैम। ओके ओके ऑफलाइन वीडियो देख। ओके ओके। ठीक है मैम।
जैसे आपने अभी यहाँ स्टेटमेंट में ब्लू था, ब्लू आपका किस तरीके का मीन्स वो वर्क कर रहा है, कौन सा नाउन की तरह वर्क करता है? जैसे कलर की बात होती है तो कॉमन नाउन हो सकते हैं, राइट? ब्लू लाइट में आपका ब्लू लाइट में जो है वो नाउन की तरह होगा। और एक एग्जांपल जैसे नाउन का एग्जांपल हमने उस दिन डिस्कस किया हुआ था ब्लू का। बट फिलहाल अभी यहाँ के एग्जांपल में आपका ब्लू जो है ये मुझे एडजेक्टिव लग रहा है, एडजेक्टिव ही होगा ये। जनरली जो है वो ऐसा केस नहीं होता है कि ये आपका नाउन होगा। ओके, रेयर केसेस कह सकते हैं, रेयर भी नहीं, रेयर से ज्यादा ही कहेंगे कि वो ब्लू आपका नाउन की तरह होगा। ओके, नेक्स्ट है which word is a noun in this sentence? Don't be late for the concert. Don't be late for the concert. यहाँ पे आपका डोंट बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट किसके बारे में बोल रहा है कि किस में लेट नहीं होना है? कॉन्सर्ट। तो यहाँ पे कॉन्सर्ट आपका नाउन हुआ, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, हम यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर देते हैं। ये हर एक ऑप्शन गलत क्यों ये भी बता सकते हैं कि आपका जैसे लेट है तो लेट आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लेट आपका एक तरह से एडवर्ब होगा, राइट? एडवर्ब या एडजेक्टिव हो सकता है। डोंट बी लेट, ओके, मीन्स एक तरह से वो बी लेट, राइट? बी लेट, रिमेम्बर वर्ब में हम पढ़ रहे थे बी रिलेटेड चीजें, राइट? तो यहाँ पे एक तरह से लेट यस। आपका एडवर्ब हो सकता है, बी लेट, ओके। और यहाँ पे ये नाउन नहीं होगा लेट आपका। फिर उसके बाद किस फॉर आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, राइट? फॉर द कंसर्ट, कंसर्ट आपका क्या होगा? कंसर्ट आपका नाउन होगा, ओके। Which word is a noun in this question? How long will the journey take? How long will the journey take? Means यहाँ पे journey clear आपको पता चल रहा है कि noun आपका क्या है? Journey है यहाँ पे, ओके। और take आपका क्या होगा? verb होगा, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया, राइट? जर्नी नाउन होगा। लॉन्ग आपका क्या होगा? यहाँ पे लॉन्ग आपका एडजेक्टिव होगा, ओके। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, एडवर्ब भी कह सकते हैं, ओके। ओके देन, देयर इज नो नाउन इन दिस सेंटेंस, कम क्विकली। यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। यहाँ पे आपका कोई नाउन है कि नहीं ये बताना है। तो आपका यहाँ पे नाउन है, नहीं है, राइट? स्टेटमेंट ट्रू है, राइट? यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है कम क्विकली स्टेटमेंट में, ओके। कम आपका एडवर्ब है, क्विकली आप सॉरी कम आपका वर्ब है, क्विकली आपका एडवर्ब है। इसमें मैंने रीजंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप लोग देख लेना। नाउ there are 3 nouns in this sentence. The children are having a great time in the park. तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कितने नाउन है। मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि 3 नाउन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना वो 3 नाउन कौन कौन से हैं। ये चिल्ड्रन हो गया नाउन आपका, ओके। टाइम हो गया और पार्क। गेस्ट भी हो सकते हैं। ग्रेट, चिल्ड्रन, गेस्ट एंड पार्क। गेस्ट, सॉरी, गेस्ट कहाँ लिखा हुआ है? चिल्ड्रन, टाइम एंड पार्क। हाँ, टाइम, टाइम आपका कौन सा नाउन है? एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल। ओके।
तो टाइम आपका एक तरह से काउंटेबल है, मीन्स काउंट कर सकते हैं, नहीं भी काउंट कर सकते, राइट? कुछ सेंस में ये काउंटेबल होगा, कुछ मीन्स अदर सेंस में ये अनकाउंटेबल होगा, बट ये आपका नाउन होगा टाइम जो है। ओके, नेक्स्ट है आपका अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द नाउन। क्या आपका सेंटेंस हमेशा नाउन से बिगिन करता है? जरूरी नहीं है। ओके, प्रोनाउन से भी स्टार्ट करता है, राइट? ही, शी, दे, ये सब प्रोनाउन है आपके, राइट? आई आपका प्रोनाउन है, राइट? ओके, देयर इज क्लियर हो रहा है जो चीजें यहाँ पे बताई मैंने? कोई डाउट है पूछ सकता है, किसी को डाउट है पहले क्वेश्चन में, नो मैम। नो मैम। सेकंड क्वेश्चन में? नो मैम। ओके, थर्ड, नो मैम। फोर्थ क्वेश्चन, जर्नी नाउन है कि नहीं ये चीज? फोर्थ क्वेश्चन, ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमें अभी एडिटोरियल और कन्वर्सेशन भी करना है, कि कैसे कन्वर्सेशन करेंगे वो चीजें मैं बताऊंगी आप लोग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देयर इज वन नाउन इन दिस सेंटेंस, वेयर इज द स्टेशन? आपको बताना है कि यहाँ पे नाउन क्या है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक नाउन, और वो नाउन कौन सा है इसमें? वेयर इज द स्टेशन? तो यहाँ पे आपका नाउन क्या है? स्टेशन है, राइट? स्टेशन। ओके, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एक ही नाउन है। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे कि नाउन स्टेशन होगा कि नहीं? वेयर आपका क्या होगा? वेयर आपका एडवर्ब या कंजंक्शन हो सकता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which word is a noun in this sentence? The sun is too bright to look at today. यहाँ पे आपको क्या करना है? नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपको नाउन क्या लग रहा है? नाउन आपका सन होगा। ओके, नेक्स्ट है, which word is a noun in this sentence? Please do not walk on the grass. Please do not walk on the grass. Grass आपका नाउन होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं होगा, चाइल्ड नहीं होगा। ओके, how many nouns are there in this sentence? Please put the heavier books on the desk over there. तो आपको नाउन बताना है, कितने नाउन है इसमें? हेवियर बुक्स, हेवियर क्या है आपका? एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव। या तो यहाँ पे आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कितना है। हेवियर तो एडजेक्टिव हो गया। बुक्स, बुक्स आपका टू नाउन हो नाउन। गया। बुक्स नाउन हो नाउन। गया। ओके, बुक्स एंड डेस्क। डेस्क भी आपका नाउन होगा। ओके, नेक्स्ट, choose the right pronoun to correctly finish this sentence. Dash need to follow me closely. Dash need to follow me closely. You need to follow me closely. This is the only option that agrees with need. Any other option would have to be needs. Means कोई और ऑप्शन अगर होता तो वहाँ पे s लगाना पड़ता। Okay? You need to follow me closely, and he needs to follow me closely. She needs to follow me closely. It needs to follow me closely. Okay? बट इट कहीं पे भी ये सेंस, ये डी तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ओके, ही शी हो सकता है। ओके, इट में अगर एनिमल रिलेटेड कुछ होता तो हो सकता था, बट फिलहाल यहाँ पे पर्सन रिलेटेड चीजें सेंस निकल के आ रही है। इट नीड टू फॉलो मी क्लोजली। ओके, यहाँ पे एस लगता तो हम ही शी इट यूज कर सकते थे। ओके, Melania and I are going soon, so you can come with. Melania and I are going soon, so you can come with. We तो होगा नहीं। ओके, देम भी होगा नहीं। यहाँ पे आंसर क्या होगा? अस होगा। ओके, नाउ
I wonder why Geoff rushed off. Did you upset? ही तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन को ही रेफर नहीं करना चाहिए यहाँ पे। आपने एंटीसीडेंट वाला पार्ट अगर याद होगा आपको, तो यहाँ पे वी आर मिसिंग व्हाट, द नेम ऑफ द पर्सन, राइट, या किसको ये रेफर कर रहा है, डिड यू अपसेट, ओके। नाउ यहाँ पे ये चीज आपका आंसर हिम होगा, हिम इज द ओनली आंसर। नाउ आई वंडर व्हाई जियोफ रस्ड ऑफ। जियोफ को हम किससे रेफर कर सकते हैं? जियोफ हिम हो सकता है, ओके। नाउ ही तो लगेगा नहीं यहाँ पे, ओके। जियोफ को हम किससे रेफर करेंगे? हिम से, ओके। क्योंकि अब आप एक चीज यहाँ पे देखना, ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे है। अगर सब्जेक्ट प्लेस पे होता तो ही हम कर सकते थे, ओके। नेक्स्ट, ओपन द डोर, इट्स मी, ओके। आई आपका होगा नहीं, सब्जेक्ट प्लेस पे अगर होता तो आई होता, ऑब्जेक्ट प्लेस पे मी होगा, ओके। एंड कहीं पे भी यहाँ पे शी या ही रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। हिम होता तो पॉसिबल था, मी होता तो पॉसिबल था, ओके। तो यहाँ पे मी होगा, इट्स मी, ओके। नाउ यहाँ पे आंसर भी दिया, them, him or her would also have made sense here, but not I, they or she, okay. I was stopped by a woman who wanted to ask dash the way to the post office. So ask me. I was stopped by a woman who wanted to ask me the way to the post office, okay. तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? Who wanted to ask, it होगा नहीं, ओके, क्योंकि ये पर्सन से डिस्कशन चल रहा है। वी भी होगा नहीं, क्योंकि 1-to-1 कन्वर्सेशन एक तरह से हो रहा है, वांटेड टू आस्क मी, ओके। आई वॉज स्टॉप्ड बाय ए मैन, मीन्स दो ही लोग हैं, एक वुमेन और एक आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे मी होगा, ओके। एंड शी या ही ये क्लियर नहीं है कि वो पर्सन जो आई है वो कौन है, मेल है कि फीमेल है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आई कांट फाइंड डैश एनीवेयर, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। हर हिम होता तो पॉसिबल था, देम होता तो पॉसिबल था कि हम लगा सकते थे, ओके। ही शी नहीं होगा, दे भी नहीं होगा, ओके। नाउ यू आर हियर, प्लीज गो विद देम, ओके। प्लीज गो विद वी भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम वी नहीं यूज करेंगे, ओके। देम ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम यूज करते हैं, दे सब्जेक्ट प्लेस पे होता है, ओके। ये सब जितने सारे सब्जेक्ट प्लेस पे यूज होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, नाउ यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है? दिस देम करेक्ट ऑप्शन है आपका, ओनली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दैट टेक्स द एक्शन ऑफ वर्ब गो विथ, ओके। अस और हर वुड हैव आल्सो वर्क बट नॉट वी, दे और शी, मींस अगर अस और हर भी होता तो वो भी पॉसिबल था यहाँ पे। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, ओके। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट कैन आई भी हो सकता था, ओके। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ऐसा करके स्टेटमेंट होता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ओके ना। ये यू क्यों आपका ओनली ऑप्शन है? ये चीज आपको देखना होगा, ये आपका एक तरह से कहाँ पे, व्हाट कैन आई, देन डू अबाउट इट, सब्जेक्ट प्लेस पे आपका यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ इस जगह पे होता तो हिम, हर, अस हो सकता था, ओके। अबाउट अस, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट हो, ओके। इट आपका ऑब्जेक्ट प्लेस पे है एंड ये आपका सब्जेक्ट प्लेस है, ओके। तो यू आपका यहाँ पे होगा, यू, आई, वी, ये सब सब्जेक्ट प्लेस पे आएंगे, ठीक है। What does it refer to? They have just closed the post office and turned it into a coffee shop.
तो आपका यहाँ पे इट किसको रेफर कर रहा है? दे हैव जस्ट क्लोज द पोस्ट ऑफिस, उन्होंने अभी जस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस क्लोज किया, टर्न इट इनटू अ कॉफी शॉप, और उसको किस में चेंज कर दिया? कॉफी शॉप में। अब ये उसको किसको रेफर कर रहा है? पोस्ट ऑफिस को। ओके, इट इज रेफरिंग टू पोस्ट ऑफिस। दे होगा नहीं, ओके, क्योंकि ये प्लेस रिलेटेड चीजें हो रही है। ओके, वो लोकेशन की बात, वो पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है। ओके, नाउ कॉफी शॉप की बात नहीं कर रहा। टर्न इट इनटू मींस कॉफी शॉप को ही कॉफी शॉप में कन्वर्ट नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। मींस यहाँ पे इट जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस होगा। ओके, what does they refer to? Those flowers on the tables look like little trumpet. What are they called? So यहाँ पे आपका दे किसको रेफर कर रहा है? फ्लावर्स को। ओके, दोज फ्लावर्स ऑन द टेबल। ओके, इट होता तो आप कह सकते थे टेबल हो सकता था। ओके, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में दे किसको रेफर कर आपको? ये आपका रेफर कर रहा है फ्लावर्स को। ओके, दोज फ्लावर्स ऑन द टेबल लुक लाइक लिटिल ट्रम्पेट, जो टेबल पे जो फ्लावर्स है वो किसकी तरह दिखते हैं? ट्रम्पेट की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे जो दे है, व्हाट आर दे? जस्ट अ सेकंड, दोज फ्लावर्स ऑन द टेबल लुक लाइक, व्हाट आर दे? देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, दोज होगा। ओके, दोज किसको रेफर कर रहा है? ठीक है, मैम ट्रम्पेट्स का मतलब क्या है? ये और ये एक तरह से जैसे म्यूजिशियंस वगैरह अपने बारात वगैरह जब जाती होगी तो देखा होगा, बजाते होंगे वो लोग ट्रम्पेट्स। ओके। उससे आवाज निकल, ट्रम्पेट का शेप सी शेप होता है थोड़ा, मीन्स उसमें आप हवा डालेंगे तो उससे आवाज निकलती है। उसमें म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हैं वो। ओके। जी जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो। ओके, नाउ what is the missing pronoun? Time to go to school, Sue. Have you got your keys? I can't find them. Okay, तो यहाँ पे them जो है वो किसको रेफर कर रहा है? कीज को। ओके, योर कीज को। टाइम टू गो टू स्कूल, Sue. Have you got your keys? I can't find them. कीज प्लूरल है। ओके, इसलिए them लगा हुआ है। ओके, इट अगर की होता तो इट होता। ओके, I can't find it. Okay, complete this sentence. Paul is coming, don't let him see us. Okay, यहाँ पे him होगा, his नहीं होगा। Okay, don't let him see us, he भी नहीं होगा। Okay, he अगर स्टार्टिंग में रहता तो कह सकते थे कि हाँ ये ही हो सकता था। he let it go ऐसा करके, he let Paul is coming, don't let him see us. Okay, okay, this is all. सत्यांशु, लिंक शेयर किया हुआ है अपने ग्रुप में, आप ले लेना। ओके मैम, ओके, सॉरी चैट में लेट जी, ज्वाइन किया। मेरे कोई को बात लगा नहीं, क्या सैटरडे है, आज क्लास आप नहीं है। सॉल्व फिर करने मैं की मोबाइल कोशिश चेक किया कर तो देखा लेना। मैं क्लास ज्वाइनिंग आया। जी कोई बात नहीं। ओके मैम। तो अभी यहाँ के मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे कि रीजन क्या है, कि मतलब कौन सा आंसर आपका है और वो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या होगा। ओके, ओके देन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल पार्ट। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है? टेस्ट जो हुआ था अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एनीवन, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट अगर पूछना है तो पूछे।
एक चीज क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन, और सब्जेक्ट प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा क्लैरिटी आई होगी। ओके, उसके अलावा नाउन आइडेंटिफाई करना इजी होगा, नाउन का आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वो सिर्फ जगह का नाम, पर्सन का नाम, थिंग का नेम, ये सब होगा। ओके, नो कंफ्यूजन, किसी को कुछ नहीं पूछना है। इन्फिनिटी का क्या होगा किसमें? अविनाश, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, माइक ऑन करके पूछे। इंफिनिटिव फोर्सेस में है, एडजेक्टिव, नाउन या आपका वॉइस भी क्लियर नहीं है, फिर से बताएं। इंफिनिटिव फोर्सेस में है, नाउन या एडजेक्टिव या और कुछ एडवर्ब। इन्फिनिटी का आप पूछ रहे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हाँ, इन्फिनिटी आपका एक तरह से एडजेक्टिव होगा। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल जैसा साउंड कर रहा है, राइट? इन्फिनिटी अनकाउंटेबल, राइट? इन्फिनिटी आपका नाउन भी हो सकता है। क्योंकि टाइम नाउन या नाउन होगा, नाउन होगा। ओके, इन्फिनिटी आपका नाउन होगा। ओके। जो पीडीएफ मैंने शेयर किया उसको आप लोग रिवाइज कर लेना एक बार, कि चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। ओके, बस एक एक वर्ड अपने दिमाग में रखना आप, उसका शॉर्ट मीनिंग, कि अच्छा इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, कैसे पता करें। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब चीजें बस एक एक वर्ड दिमाग में आप रखे रहो, लॉन्ग टाइम के लिए काम आएगा। जरूरी नहीं कि लॉन्ग डेफिनेशन याद रखें। ओके, ऋतिक आपको कुछ पूछना है? ऋतिक, सत्यांशु आपको लिंक मिल गया होगा। ओके देन, फिर यस मैम, मिल गया है। मैं अभी क्वेश्चन नहीं देखा हूँ। ओके ओके, पहले क्लास कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। सो नाउ अभी हम कन्वर्सेशन पे पहले वर्क करेंगे, देन एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का कोई भी मतलब, किसी भी सिचुएशन में कैसे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, ये चीज मैं बता देती हूँ पहले। कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना हो आपको, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो आपको ऐसे स्टार्ट करेंगे, जैसे आप बोल सकते हो टेल मी अबाउट यू। ओके, टेल मी अबाउट यू मीन्स इस तरीके से स्टार्ट कर सकते। दिस इज, ये एक आपका ग्रेट मीन्स एक अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का कन्वर्सेशन, क्योंकि ये दूसरे पर्सन को इनवाइट करता है कि वो आपसे कुछ कहें, जो मतलब, या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, या आप उनसे कुछ बोलना चाहते हैं उन अपने जॉब रिलेटेड या उनके जॉब रिलेटेड, तो वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, या अपने
अपने से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन अगर करना है एक दूसरे से, तो हम ये पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हैं, टेल मी अबाउट यू। ओके, टू नो मीन्स पर्टिकुलर पर्सन, या उस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है या सोच क्या रहा है वो पर्सन। ओके ना, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आपको मीन्स होस्ट को कैसे पहचानेंगे? कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सबसे ओके, एनीवन वांटेड टू आस्क समथिंग? मैम टेल मी योरसेल्फ नहीं बोल सकते हैं? नहीं, योरसेल्फ नहीं होगा, अबाउट यू होगा। टेल मी योरसेल्फ मीन्स आप खुद से बताओ। ये तो एक तरह से ओनरशिप, अथॉरिटी जैसा हो गया कि आप उनको ऑर्डर दे रहे हो। ओके मैम। ओके, तो मैम इसका भी तो मतलब वही हुआ, टेल मी अबाउट यू, टेल लगभग मी तुम अबाउट अपने बारे में यू। बताओ कुछ। एक वो कामनेस मीन्स एक तरह से पोलाइटनेस शो हो रहा है इसमें ना, टेल मी अबाउट यू, या कि तुम अपने बारे में बताओ, ऐसा ना। एक इच्छा कि मीन्स अपने बारे में बताओ, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, एक तरह से ये सेंस निकल के आ रहा है टेल मी अबाउट यू में। ओके, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? कैसे कन्वर्सेशन को आप मतलब चलते रहने देना है कन्वर्सेशन को? तो आप क्या कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो और चीजें कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? ओके, डिड यू डू एनीथिंग फन दिस पास्ट वीकेंड, या व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू ऑन द वीकेंड, ऐसा करके आप बोल सकते हो कन्वर्सेशन को और कंटिन्यू करने के लिए। वो खुद से बताएंगे अपने बारे में। ओके, टेल मी अबाउट यू। सबसे पहले तो ग्रीटिंग पार्ट आपको पता है कि हमेशा ग्रीट करना है, कोई भी नया कन्वर्सेशन जब करते हैं तो ग्रीटिंग करना अच्छी बात होती है। हे, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ऐसा करके कन्वर्सेशन रहता है। हाउ हैव यू बीन, ऐसे करके कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ऐसे। ओके, देन आप बोल सकते हैं, अगर मीन्स इंटरव्यूअर है तो टेल मी अबाउट यू, या स्ट्रेंजर है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है कोई भी या कोई भी हो सकता है, तो वो उससे आप बोल सकते हो टेल मी अबाउट यू। देन या आपका कोई कलीग वगैरह हो तो उससे बोल सकते हो व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, ऐसे करके फर्दर कन्वर्सेशन जब करना हो। ओके, या अगर ट्रेन में बैठे हो तो वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। ओके, देन और क्या कर सकते हो, मीन्स और डीपर लेवल में जानने की कोशिश कर सकते हो उस पर्सन के बारे में, डीपर लेवल के बारे में, जैसे कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर। ओके, व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट, हु इज योर रोल मॉडल, मीन्स उस पर्सन के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रीटिंग करनी है। ग्रीटिंग करने के बाद इंटरैक्शन अगर स्टार्ट करना है, मीन्स कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो टेल मी अबाउट यू कह सकते हो आप। ओके, और भी तरीके हैं, जैसे टेल मी अबाउट यू अगर नहीं कहना है तो व्हाट्स योर स्टोरी कह सकते हैं, या हाउ डू यू लाइक व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ योर डे टू डे, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, देन फिर उसके बाद कन्वर्सेशन को और कंटिन्यू करने के लिए आप आगे बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, या व्हाट आर योर फेवरेट रेस्टोरेंट्स अराउंड हियर। ओके, देन स्पोर्ट रिलेटेड चीजें डिस्कस कर सकते हैं, कीपिंग अप विथ स्पोर्ट्स, या न्यूज रिलेटेड जो रिसेंट चीजें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ भी रिकमेंडेशन उनसे पूछ सकते हैं, यू कैन यू रिकमेंड मी समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके, और कैन यू रिकमेंड एनी यूनिक डेजर्ट्स हियर, ऐसे करके। ओके, देन उसके बाद और डीपर में जाने की कोशिश करें, कन्वर्सेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। उस वक्त उसको करने के लिए आप पूछ सकते हो उनका जो गोल वगैरह भी जान सकते हैं, रिग्रेट क्या है उनका, रोल मॉडल क्या है उनका। ओके, और इसमें पूछते समय आपको बोल्ड रहना है, मीन्स डरना नहीं है, एक तरह से कि आप एकदम कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। ओके, देन कन्वर्सेशन जब आप मीन्स किसी भी अप्रोप्रिएट टॉपिक पे अगर करना हो, जैसे कि चैरिटेबल कॉज रिलेटेड अगर डिस्कशन करना हो, तो उस वक्त आप इज देयर अ चैरिटेबल कॉज यू सपोर्ट, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। एंड उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इनसाइड टॉपिक्स के बारे में जानने की कोशिश इसमें और फर्दर कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी यही है। और
कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि या अपना ओपिनियन रख सकते हो आपकी, या आई ऑल्सो थिंक लाइक दिस दैट पीपल मस्ट डोनेट और पीपल मस्ट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, या सोशल जस्टिस, कोई भी टॉपिक आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो उससे रिलेटेड, एंड देन अपना ओपिनियन रखने के बाद उसके साथ साथ अगर आप ओपिनियन से पहले आप नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद अगर वो आपका अप्रिसिएशन कर रहे हैं, आपका तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें थैंक्स, इट्स माय प्लेजर ऐसा करके भी बोल सकते हैं अगर आपने उनकी हेल्प की हुई है किसी तरीके से। ठीक है, फिलहाल अभी बस इतना एक एक स्टेप जानने की कोशिश कर लो आप। ओके, 4-5 टिप्स मैंने बताए होंगे आपको। ओके, Hello, या madam. Give one example how to talk with a stranger. स्ट्रेंजर से बात करने के लिए। हाँ, ओके ठीक है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे ही हो, ठीक है, तो okay. excuse me sir, can you tell me the way to the railway station? So that person will say, of course, go straight along this road for half a kilometer until you reach a junction. Okay, then वो डायरेक्शन बताएंगे, you will reach a bridge. Okay, ऐसा करके then आप बोलना, thanks a lot sir, I can now reach the station without any difficulty. Okay, इस तरीके से कर सकते हैं। या कुछ और बोलना है तो can you help me reach this particular location where test is conducted? Then you can say of course I can help you, ऐसा करके it is near here, या stranger हो सकता है या आप हो सकते हैं, of course I can help you, it is near here, go straight direction बता सकते हैं, and उसके बाद जब आप वो direction बता दे तो आप बोल देना it is very kind of you sir. Okay, Okay. Thank you. और एक और जैसे स्ट्रेंजर आपसे बात कर रहा है तो सर कैन यू डू मी अ फेवर, विल यू टेल मी द वे टू चर्च वेयर दे हेल्ड द फेस्टिवल लास्ट वीक? तो आप बोलना व्हाई नॉट, गो स्ट्रेट अलोंग दिस वे, मीन्स ये डायरेक्शन रिलेटेड चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। ठीक Go straight along this way until you see a transformer on the left hand side, turn to the first lane on the right side, after that go for half a kilometer and you'll reach the church that stands on the right hand side. Then आप बोलना थैंक यू सर। ओके, ऐसे करके आप कन्वर्सेशन स्ट्रेंजर से करना। या और भी एक कन्वर्सेशन बता सकते हैं स्ट्रेंजर से ही, जैसे आपको रास्ता या एड्रेस ही पूछना है, वही चीज़ है। तो स्ट्रेंजर आपको हो सकता है किस तरीके से स्ट्रेंजर बोले, हो सकता है आपको फ्रेंड भी बोल सकता है, फ्रेंड कैन यू हेल्प मी टू ट्रेस दिस एड्रेस, वो एड्रेस आपको दिखा सकते हैं। तो आप उसको एड्रेस को पढ़ोगे। Stranger in a meeting or any restaurant. स्ट्रेंजर इन अ मीटिंग और अ रेस्टोरेंट। हाँ, ओके, स्ट्रेंजर अगर जैसे शॉप पे अगर हो हाँ, तो या गुड मॉर्निंग सर, कैन जैसे मीटिंग में ही है आप, उस तरह का मैं बता देती हूँ। Excuse me sir, can I ask you for a help? Okay, so yes please, what can I do for you? ऐसा करके आप बोलना। ये अगर मीटिंग रिलेटेड, आई जस्ट वांटेड टू नो वेयर इज द केबिन वेयर आई कैन गिव माय इंटरव्यू, लाइक अगर आप रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहे हो, ओके, रिसेप्शन में जो भी बैठा होगा, तो एक्सक्यूज मी सर कैन आई आस्क यू फॉर हेल्प? या श्योर। देन वो पर्सन बोलेगा या श्योर। So you can say I just wanted to know the way to the cabin where the interview is going on. Then वो अपना डायरेक्शन बताएंगे, ओके, एंड आप वहाँ पे चले जाना। एंड देन आप जब पर्सन को जो है जब जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द डायरेक्शन ऐसे बोल सकते हो। एंड उनको बोल सकते हो हैव अ ग्रेट डे, ओके, ऐसे हैव अ ग्रेट डे।
देन आप केबिन में मूव कर सकते हो। देन केबिन में एंटर करने से पहले नॉक नॉक करना है, नॉक नॉक मे आई कम इन सर, उस तरीके से आप करना। Okay. Okay. सबसे पहले मैं Friends, टिप्स एक हेल्दी कन्वर्सेशन रिलेटेड मैं टिप्स बता देती हूँ कि हाँ जब भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, आस्क अ क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, किसी सिचुएशन के बारे में या इवेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो या हेल्प के लिए ऑफर कर सकते हो, या कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो डिस्कस करने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें आप शेयर कर सकते हो, कुछ कमेंट कर सकते हो या फेवर ले सकते हो, या खुद का इंट्रोडक्शन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपडेट्स रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो, उनके बारे में बात कर सकते हो, उनका ऑब्जर्वेशन। हाँ कौन? और रेस्टोरेंट में कैसे रेस्टोरेंट में कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन रेस्टोरेंट में मीन्स किससे करना है? Any stranger or with the owner of the restaurant? विथ ओनर? Yes. ओके। जैसे अगर आपको कोई कंप्लेन वगैरह करना हो, ये भी हो सकता है। हेलो सर, या रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच मीन्स जो वेटर होगा, हाँ या रेस्टोरेंट मैनेजर की बात मैं करती हूँ। हाँ यहाँ 3 पर्सन का मैं बात करने जा रही हूँ। एक मैनेजर होगा, एक कस्टमर होगा, ओके, और एक वेटर होगा, हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे वेटर से, ठीक है। हेलो सर, वेटर आएगा। हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? ओके, वेटर बोलेगा हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। मीन सबसे पहले ग्रीट किया और क्वेश्चन पूछा उसने, ओके। आपने नोटिस किया, वेटर आया, ग्रीट किया और क्वेश्चन पूछा, हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, ठीक है। अब कस्टमर क्या करेगा, वो भी या तो क्वेश्चन पूछेगा या तो वो रिस्पॉन्ड करेगा उसका आंसर, ओके। कुड यू प्लीज टेल मी द बेस्ट डिशेस इन दिस रेस्टोरेंट, ओके। तो कस्टमर क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि आप बताओ कि बेस्ट डिश क्या है इस रेस्टोरेंट में। तो वेटर बोलेगा श्योर सर, ओके, श्योर सर, यू कुड ट्राई आवर पिज्ज़ा, बर्गर लाइक दिस, ऐसा करके ऑल ऑफ दिस आर रिकमेंडेड बाय द रेस्टोरेंट, ओके। तो कस्टमर क्या बोलेगा, परफेक्ट, ओके, परफेक्ट, आई वुड लाइक टू ऑर्डर एवरीथिंग दैट यू जस्ट रिकमेंडेड, ओके, और यू जस्ट मेंशन्ड, ओके। तो कस्टमर क्या बोलेगा, वहाँ पे अप्रिसिएशन मीन्स वेटर ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, अब कस्टमर क्या कर रहा है, उसको अप्रिसिएशन एक तरह से कह सकते, थोड़ा सा वो किया, खुश हो गया कस्टमर, परफेक्ट, आई वुड लाइक टू ऑर्डर एवरीथिंग दैट यू जस्ट मेंशन्ड। तो वेटर बोलेगा दैट साउंड गुड, ओके, वेटर भी खुश हो गया, मीन्स अच्छा एनवायरमेंट डेवलप हो गया, दैट साउंड्स गुड। वुड यू ऑल्सो लाइक टू ट्राई और रेंज ऑफ डिप्स विथ समथिंग लाइक कोल्ड ड्रिंक, आप कुछ भी बोल सकते हो, विथ दिस कोल्ड ड्रिंक सर। तो कस्टमर बोलेगा ओ यस, व्हाट डिप्स आर ऑफर्ड बाय द रेस्टोरेंट्स, ओके। देन वेटर क्या बोलेगा, वी हैव, मीन्स वो अपना बताएगा जो भी मेन्यू वगैरह होगा, वी हैव दिस इफ यू वांट दैट एज एन ऑप्शन टू, मीन्स स्टार्टर के साथ आपको कुछ और चीज़ें भी मिल रही हैं, स्वीट्स मिल रही है, ऐसा करके आप समझ लो। तो वी हैव दिस ऑप्शन टू, मीन्स आप वेटर क्या कर रहा है, कस्टमर को इम्प्रेस अपनी तरफ, अपने मीन्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने रेस्टोरेंट के जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी उनका स्टॉक में जो भी चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर थोड़ा सोचेगा, ओके, आई विल हैव मेयो डीप एंड हर्ब डीप, ओके, ऐसा करके। फिर वेटर बोलेगा ऑल राइट सर, एनीथिंग एल्स यू वांट? तो कस्टमर बोलेगा नो थैंक यू, दैट विल बी ऑल, ओके। देन वेटर बोलेगा श्योर, विल गेट इट राइट अवे, ओके। वेटर अपना फूड वगैरह दे देगा। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर को अब आ गई गुस्सा, ओके। Oh my God, nothing tastes good apart from the tips and the drinks. The food is stale, means food अच्छा नहीं है, गंदा है। वेटर बोलेगा, वेटर अब परेशान, oh no sir, how is that possible? Customer, I'd like to speak to the restaurant manager, please call him. अब कस्टमर गुस्से में है, वो बोल रहा है I would like to speak to the restaurant manager, please call him, ठीक है। वेटर क्या बोलेगा, okay sir, I will call him.
राइट अवे. ओके, आई विल कॉल हिम राइट. मैं तुरंत उनको कॉल बुलाता हूँ. ठीक है. रेस्टोरेंट मैनेजर आएगा, बोलेगा इज देयर अ प्रॉब्लम सर. कस्टमर बोलेगा यस, I had ordered the recommended dish from the restaurant and all I got is stale food. Means उसने जितने भी रेस्टोरेंट में जो recommended dishes थे वो ऑर्डर किए थे और सारे के सारे गंदे हैं, अच्छे नहीं लगे. No doubt that drinks are and dips are good, but the food is stale. The bread is bad. The bread is bad. The chicken is not cooked properly. Okay? उसके बाद रेस्टोरेंट मैनेजर बोलेगा आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू फेस्ड सर. ओके, बोल रहा है कि आपको जो भी परेशानी है उसके लिए वो सॉरी बोल रहा है. आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू फेस्ड सर. कस्टमर बोलेगा आई एक्सपेक्टेड इट टू मच बेटर. कस्टमर जो है रेस्टोरेंट मैनेजर से अभी भी कंप्लेन कर रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे भी अच्छा हो सकता था. ओके, मीन्स वो सॉरी बोलने की जगह कुछ और ऑफर कर सकता था. तो रेस्टोरेंट बोलेगा, रेस्टोरेंट मैनेजर जो है वो बोलेगा अंडरस्टैंड सर, आई विल लुक एट. जस्ट अ सेकंड, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर ले. विकास, जस्ट अ सेकंड. ओके ओके देन. एंड देन रेस्टोरेंट मैनेजर क्या बोलेगा, आई अंडरस्टैंड सर, आई विल लुक एट इट दैट द डिशेस आर सर्व टू यू वंस अगेन एंड दे आर फ्रेशली मेड. अभी जैसे कस्टमर ने बोला कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे अच्छा हो सकता था. मीन्स रेस्टोरेंट मैनेजर सॉरी बोलने की जगह उसको फ्रेश फूड और मतलब सर्व कर सकता था सॉरी बोलने की जगह. ये चीज कस्टमर का कहना था. ओके, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर आई अंडरस्टैंड सर बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड सर, आई विल लुक एट इट दैट द डिश आर सर्व टू यू वंस अगेन एंड दैट दे आर फ्रेशली मेड. वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर. ओके, प्लीज टेक अ सीट. ओके, वो कस्टमर को बोला है प्लीज टेक अ सीट. कस्टमर अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है. ऑल राइट सर. देन रेस्टोरेंट मैनेजर बोलेगा हियर इज योर फूड सर. कस्टमर बोलेगा ओह इट टेस्ट गुड नाउ, समथिंग दैट आई हैवंट टेस्टेड अर्लियर. अब कस्टमर इम्प्रेस हो गया है. रेस्टोरेंट मैनेजर बोल रहा है थैंक यू सो मच सर एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू हैड टू फेस. ओके, मीन्स यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर बोला है कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया बोल रहे हैं यहाँ पे, और सॉरी बोल रहा है कि जो भी उनको दिक्कत हुई, परेशानी हुई, इसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं. ये चीज, थैंक यू सो मच सर एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू हैड टू फेस. कस्टमर अभी बोला इट्स ऑल राइट. देन रेस्टोरेंट मैनेजर बोल रहा है प्लीज एंजॉय योर मील सर एंड कस्टमर देन बोलता है थैंक यू. ओके, अभी समझ में आया कैसे कन्वर्सेशन चल रहा है. Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले आपको मैं जो टिप्स अभी बता रही थी वो चीज ध्यान में आप सुन लेना. फिर से सुन लो आप लोग. माइक ऑफ कर लो. एक हेल्दी कन्वर्सेशन, माइक ऑफ कर लो. ओके, ऋषिकेश, ऋतिक आपको कुछ पूछना है? ऋतिक, मैम मेरा एक ही क्वेश्चन था. आपने अभी जो कॉन्वर्सेशन बढ़ाया इतना सारा, लाइक उसको मैम लाइक इफेक्टिव और शॉर्ट कैसे, वो अभी तो बहुत अच्छा बना है बट लाइक मैम ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है. कोई पिक्चर विक्चर देख रहा है आदमी, वैसा कुछ हो गया ये तो. जी, अभी हम लोग जब भी बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि पिक्चर नहीं जैसा तो लग रहा है. वो टिप्स मैं आपको बता देती हूँ. अभी जैसे कि आप जब कन्वर्सेशन करो तो सबसे पहले ग्रीटिंग करना और क्वेश्चन पूछना. ठीक है, उसके बाद आप को चीजें अगर अच्छी लगी, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट करना. जैसे कस्टमर ने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया था, राइट. जब उसको जो रेस्टोरेंट जो उसने वेटर ने जब उसको जो डिशेस थी ये सब बताया तो उसने उसको कॉम्प्लीमेंट भी किया था, राइट. देन उसके बाद क्या किया उसने उसके बाद या तो अगर आप किसी और से भी डिस्कस कर रहे हो तो जैसे किसी इवेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हो. जैसे माय फेवरेट या कुछ भी सिचुएशन रिलेटेड चीजें डिस्कस कर सकते हो. जैसे आप किसी कॉफी शॉप में हैं एंड आप अपने फेवरेट कॉफी के बारे में बात करने जा रहे हैं टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू इन लाइन. जो पर्सन आपके नेक्स्ट में खड़ा है आप उससे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, माय फेवरेट शेक इज द बेल्जियम चॉकलेट शेक topped with whipped cream and ice cream. What is yours? Okay, तो यहाँ पे
ये चीजें क्या हुई कि अब जो आपके बगल में आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, आप कॉफी शॉप में हो, आपके बगल में जो खड़ा आप उससे डिस्कशन कर रहे हो, आप उससे क्या कर रहे हो, किसी इवेंट या सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। जब जैसे कि अब सेकंड पर्सन जो होगा वो अपना कुछ ओपिनियन रख रहा है, ओके, और आप उसके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ओके, तो आपको शो करना है कि आप इंटरेस्टेड हो उस पर्सन से बात करने के लिए, ठीक है। जब सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है तो आपको दिखाना होगा सामने वाले को कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं बोर नहीं हूँ आपसे बात करके। तो अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो मैं आपके ओपिनियन से आपके ओपिनियन को मतलब विलिंगनेस दिखाना आपको कि सुनने को तैयार हूँ, मैं बोर नहीं होऊंगा। तो आप किस तरीके से आई एम लुकिंग फॉर कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज, कैन यू रिकमेंड ब्रांड दैट ऑफर कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल शूज। मीन्स अगर आप किसी शॉप पे गए हुए हैं या जैसे अभी पर्सन का कॉफी शॉप वाली बात हुई थी, तो आप उसने अपना कुछ ओपिनियन दिया होगा कि माय शूज दे आर डर्टी नाउ, आई वांट दिस वन, दिस ब्रांड शूज, ऐसा करके। तो वो यहाँ पे भी आप बोल रहे आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज, कैन यू रिकमेंड ब्रांड दैट ऑफर कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल शूज, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड हेल्प ऑफर कर सकते हो कोई आप, कैन आई हेल्प यू कन्वर्ट द, या कैन आई हेल्प यू बाय शूज फॉर यू, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ओके। या आस्क फॉर हेल्प, या कैन यू बाय शू फॉर मी, या कैन यू हेल्प मी फाइंड दैट शू स्टोर, ब्रांडेड शू स्टोर, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। और अपना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर सकते हो कि जैसे आपका शू रिलेटेड ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, या आपका कोई विजिट रिलेटेड, जैसे कि किसी प्लेस रिलेटेड आप बता सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे गया था, डिड यू नो दिस प्लेस, इट्स रियली वंडरफुल, इट्स हेरिटेज प्लेस एंड इट हैज लॉट्स ऑफ थिंग वी कैन एक्सप्लोर ओवर देयर, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ओके। कोई फैक्ट आप शेयर, इट इज दिस 8th सेंचुरी बिल्डिंग, ऐसा करके कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। देन कुछ कमेंट वगैरह आप कर सकते हो, कोई फेवर ले सकते हो, ये चीजें कुछ चीजें आप ध्यान में रखो, ठीक है। और जब एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद हो सकता है चीज अब आपस में आप थोड़े फ्रेंडली हो जाएं, जब आप फ्रेंडली हो जाएंगे तो अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करो, हाय माय नेम इज सुनीता, आई एम आप कह सकते हैं आई एम न्यू ओवर हियर, आई एम न्यू एट दिस प्लेस, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। देन आप कुछ अपडेट ले सकते हो, व्हाट इज न्यू ओवर हियर मीन्स विच इज द लेटेस्ट, या कुछ ओपनिंग, विच इज द न्यू शॉप ओवर, विच इज लाइक आप वो वहाँ पे बोल सकते हो कि कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आपको जो चाहिए ना उस पर्टिकुलर एरिया का, या कुछ भी मीन्स जैसे आई हर्ड यू वर्किंग ऑन योर फूड डिलीवरी वेंचर, या कुछ बिजनेस रिलेटेड, अगर उस पर्सन को आप जानते हो और वो बिजनेस रिलेटेड कुछ भी अपना काम कर रहा हो तो आप उनसे जान सकते हो कि मतलब उनका पर्टिकुलर बिजनेस कैसा चल रहा है, ओके, हाउ इज इट गोइंग, ओके। एंड उसके अलावा आप कुछ ऑब्जर्वेशन करके भी अपनी चीजें बातों को आप उनके सामने रख सकते हो, ओके। आई थिंक योर ऑफिस बिल्डिंग हैज ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ऐसा करके। एंड उनके बैकग्राउंड के बारे में जान सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो उनके बैकग्राउंड के बारे में जान सकते हो, ओके। Like welcome to the team, tell me something about your educational qualification और experience करके ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ एडवाइस लेना हो तो एडवाइस ले सकते हो, कुछ कॉमन इंटरेस्ट शेयर करना है वो भी शेयर कर सकते हो, ओके। कुछ चीजें आपकी कॉमन हो, जैसे आप दोनों गुस्सा करने वाले पर्सन हो या पेशेंस मेंटेन करने वाले पर्सन हो, ये चीज मीन्स या कुछ कॉमन हैबिट हो खाने की, जैसे आई नोटिस दैट यू ईट विद योर लेफ्ट हैंड बट राइट विद योर राइट हैंड, आई डू द सेम, मीन्स आप लेफ्ट हैंडी हो राइट हैंडी, ऐसा करके डिस्कस कर सकते हो जो कॉमन ट्रेड्स हैं आपके। या कुछ और चीजें भी मीन्स अभी फिलहाल के लिए यही समझने की कोशिश करो कि आपको कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे कंटिन्यू रखना है, और उसके अलावा अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट, अपना कमेंट भी देना है इसमें। उसके अलावा कुछ एडवाइस लेना है तो एडवाइस, ऑफर देना हो तो ऑफर कर सकते, हेल्प और या हेल्प के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल इतनी चीजें समझ में आई कि कैसे कन्वर्सेशन को रखना है। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, फिर अभी टाइम तो है, अभी थोड़ा किसी और को कुछ पूछना है।
Okay, Avinash, you wanted to ask something? अविनाश आपको कुछ पूछना है? नो? तो मैं लाइक मैम मुझे पूछना था कि आपने इतना बात किया बट लाइक हाउ कैन यू टॉक विद समवन यू डोंट नो जी वो मैंने बात आपको ही टिप्स अभी जो दिया ना वही काम आएगा आपके, वो टिप्स। आप अपना माइक ऑन करें ऋतिक, ताकि मैं आपसे भी थोड़ा कन्वर्सेशन कर सकूं। ऋतिक, टर्न ऑन योर माइक। ओके। यस मैम तो जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो, राइट, तो यस सबसे पहले आप उससे ग्रीट करना, हेलो, मे आई नो अबाउट यू, एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। ओके, मैम आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, आप उनका अपीयरेंस देखो, या आप उनसे जब पूछना शुरू करोगे तो हो सकता है अपने बारे में कुछ अच्छा बताएं कि आई एम दी HR मैनेजर, ऐसा करके। तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, और ग्रेट ऐसे करके आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, दैट्स गुड टू नो। ओके, देन उसके बाद कुछ सिचुएशन जैसे डिस्कस करना हो वो कर सकते हैं। या कुछ उनसे हेल्प लेना हो HR से, सो यू आर इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, सो कैन यू सजेस्ट मी समथिंग हाउ आई कैन डू बेटर, ऐसा करके आप बोल सकते हो। या हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, व्हाट यू थिंक वर्किंग प्रोफेशनल मस्ट डू फॉर गेटिंग हायर इन गुड MNCs लाइक दिस, ऐसा करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, ठीक है। देन वो अपना ओपिनियन देगा, HR मैनेजर जो है, ठीक है। एंड आपको कुछ फैक्ट अगर शेयर करना कि आपने क्या सिचुएशन फेस किया, तो यू कैन से, या रिसेंटली आई गिवन वन इंटरव्यू एंड इन दैट आई वाज फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सैलरी रिलेटेड, आप बोल सकते हो, या टेक्निकल इशू यू आर फेसिंग इन दैट प्रीवियस कंपनी, या दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, या आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था, तो HR आपको जो है सजेशन वहाँ पे दे सकता है, ओके, अपना ओपिनियन भी सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन आप अपने बारे में, सर वेल माय नेम इज दिस, एंड आप ये कन्वर्सेशन जो आप मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो बताने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे देना, ठीक है। एंड यस उसके अलावा आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो HR के बारे में कि मतलब किस तरीके का पर्सन ये दिख रहा है, कैसा पर्सन है ये, एंड क्या ये आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, थोड़ा रीडिंग करने की कोशिश कर सकते हो आपको। मीन्स वहां से आपको वाइब्स पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है उस पर्सन से, ये चीजें ऑब्जर्व करना है। एंड देखना कि मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका नोटिस करना कि कितना कॉन्फिडेंस, किस तरीके से वो बातों को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वो चीज नोटिस करना कि कितना बोल्ड है वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी बातों को बोलने के लिए, ठीक है। और कुछ एडवाइस ले सकते हो उनसे, ये चीजें मैंने बताई। और कुछ कॉमन चीजें अगर नजर आती हैं, जैसे कि लाइक यू ऑल्सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, ऐसा करके आप बोल सकते हो। आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग जॉब इन दिस पर्टिकुलर एरिया, मीन्स इन HR फील्ड ओनली, ऐसा करके आप बोल सकते हो। नहीं एंड मैम मुझे तो बिम में चाहिए जॉब जी, आपको जिसमें चाहे आप उसमें बोल सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर ट्रेट अगर जैसे कॉमन चीजें आप दोनों में जो भी रहेगी वो डिस्कस करना कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने का ये एक जरिया बस बता रहे हैं आपको, ओके ओके जी। जन सब कुछ होने के बाद एक दूसरे को थैंक यू, विल मीट यू सून, या CIAO बोलते हैं, या सी यू लेटर, या सी यू सून, ऐसे करके बोल सकते हो, ओके। यस And मैम nice meeting you, thank you so much for your advice, it was a pleasure for me, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। यस यस मैम ओके देन, बाकी सबको कुछ पूछना है? Anyone who wanted to ask something? यस मैम। ओके, सुनील पूछो आप। मैम अगर अपोजिट जेंडर से बात करनी हो, गर्ल्स, तो जो, मीन्स इफ यू आर अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल, यस मैम। ओके, तो मीन्स उसमें तो आपका मेन डिपेंड करता है आपका। सी ऋतिक इज इम्प्रेस्ड, ओके। सो ऋतिक, अभी आपने जो भी सोचा, आपको क्या लगता है किस तरीके से कन्वर्सेशन करना चाहिए? सी,
ओके, गर्ल्स अगर हैं आपको उनसे बात करना है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट कर सकते गर्ल्स हैं। नहीं मैम, ऐसे मतलब जो एचआर हैं वो तो लेडीज भी हो सकते हैं ना मैम। जी जी जी, लेडीज भी वो हो सकते हैं। इंटरव्यूअर, वो सर आपने तो सारा सर के बारे में ही बताया। जी, वो दोनों हो सकते हैं, सिर्फ सर ही नहीं होंगे, वो फीमेल भी होंगे। वो अभी मैंने वो दोनों पे अप्लाई होता है, जो चीज़ मैंने बताई वो नॉट ओनली जेंडर बायस्ड था वो। नहीं नहीं मैम, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। जी, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, आप स्टार्ट। कॉम्प्लीमेंट, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के बाद खुद का मतलब इंट्रोडक्शन दे सकते हो, उनका ओपिनियन ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, हेल्प कर सकते हो, सजेशन ले सकते हो। ग्रीटिंग तो ऑब्वियसली आपको करना ही करना है, ग्रीटिंग। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो कॉमन है वो कनेक्ट करवाने के लिए आप कह सकते हो। कुछ पिकअप लाइन यूज़ कर सकते हो आप। ओके, एंड और क्या कर सकते हो, जैसे कि पिकअप लाइन में जैसे कि my friends think angels are a myth. Can you please meet them and prove them wrong? Okay, मीन्स उसके फ्रेंड जो है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बोल सकता है कि वो सोचता है कि जो एंजल्स है वो एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या आप उनसे मिलके ये प्रूव कर सकते हो कि वो जो सोचते हैं वो गलत है। ठीक है, और इसके अलावा आप उनके इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हो, उनका क्या इंटरेस्ट है। जो मैंने चीजें बताई वो दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। अपडेट ले सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो। ओके, उस पर्सन के बारे में इंक्वायर कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो गाइडेंस के लिए। एंड इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, कुछ भी शेयर कर सकते हो, रिकमेंडेशन। ओके, रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हो कि आई थिंक अपने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हो तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस और तरीके से वर्क करना चाहिए वो रिकमेंड कर सकते हो आप। या आपने जो पर्टिकुलर एरिया पे काम किया है तो आप वहाँ का चीज़ें बता सकते हो कि आई हैव वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड इट रियली वर्कड एंड एवरीवन लाइक्ड ओवर देयर, ऐसा करके। स्ट्रेंजर गर्ल्स एंड बॉयज फ्रेंडशिप, जी अभी तो फिलहाल ये चीजें फर्दर अभी इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके सत्यांशु, अभी टाइम भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बट हाँ मैंने जो चीजें बताई है बस इतना चीज याद रखना। एक, सबसे पहले ग्रीट। दूसरा, क्वेश्चन पूछना। तीसरा आपका क्या हो सकता है, ग्रीटिंग के अलावा तीसरा और क्या हो सकता है, कोई बताएगा? पहला आप क्या करोगे, ग्रीट करोगे, नौकरी ले लेके बाकी माँ बाप पे रखो। समझ में नहीं है? ओके, ओके देन सबसे पहले आप ग्रीटिंग करना, क्वेश्चन पूछना, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी भी सिचुएशन रिलेटेड। थर्ड चीज, किसी भी सिचुएशन रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो, हेल्प के लिए ऑफर कर सकते हो, हेल्प के लिए पूछ सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर सकते हो, रिकमेंडेशन दे सकते हो, फेवर के लिए पूछ सकते हो, कोई म्यूचुअल कलीग है आपका वो मेंशन कर सकते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपडेट के लिए पूछ सकते हो, या उनके बारे में कुछ और जानना हो तो आप वो भी फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ करके ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एंड अपना ऑब्जर्वेशन, जैसे ऑब्जर्वेशन किस चीज का हो सकता है, आप ऑफिस बिल्डिंग का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि द इंटीरियर इज रियली गुड और इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली गुड ओवर हियर, ऐसा करके आप ऑब्जर्वेशन करके आप चीजें आगे बातों को बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर सकते हो, कॉमन ट्रेड्स आप शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप दोनों लोगों से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग से आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई अभी? यस मैम। ओके। ओके देन हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। वेल मंडे को नहीं, कल सैटरडे कल क्लासेस होंगी। ओके, क्योंकि हमारा बीच में कल हम वर्ब्स को कंप्लीट करेंगे। ओके ओके मैम। जी, मैम मैं इस पार्ट ऑफ स्पीच कब खत्म होगा? ये बस 3-4 दिन और जाएगा मेरे ख्याल से। मैम जी पार्ट ऑफ स्पीच बोरिंग कर रहा है, ट्रांसलेशन थोड़ा आए तो इंटरेस्टिंग आए। जी, ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन मैं जो टेस्ट होगा मैं सोचूंगी, मैं उसमें ट्राई करूंगी कि आप लोग को टेस्ट में ट्रांसलेशन रिलेटेड चीजें ही दी जाए। ठीक है, मैम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना? जी मैं बता रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
Just give me a second. टेंसेस है आपका, जो कि एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट ही है। ओके, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद टेंसेस है, फिर आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सबको। एक्टिव पैसिव वॉइस का थोड़ा क्लैरिटी आ गया। एक्टिव वॉइस मैंने कल ही समझाया था कि क्या होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, किसी को याद है? अभी जैसे नेक्स्ट होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी हम डिस्कशन करें, जो कि हम अभी वर्ब वाले क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। फिर ईमेल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ों जीडी होगा। जो कन्वर्सेशन है हमारा चल रहा है, एक तरह से ये बहुत प्लस पॉइंट होगा आगे चल के, जब हमारा ग्रुप डिस्कशन है, 4 राउंड क्वेश्चन आंसर चलेगा, उस वक्त ये काम आएगा आपका। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, WH क्वेश्चंस, बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना, ईमेल में किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, ये सब पे फोकस किया जाएगा। और वोकेबलरी और जेरेंड एंड होमोफोन्स। जेरेंड अभी जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा था, आगे चल के जेरेंड का भी है, सिलेबस में दिया हुआ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स हमने जो इन फ्यूचर करना है वो ऑलरेडी कवर कर रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे चल के जल्दी जल्दी वो कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, ओके देन, किसी को कुछ पूछना है? Anyone want to ask something? No? Okay then, good night everyone, take care, we'll meet you tomorrow. Tomorrow there is a class. कोई time related कोई problem है किसी को कल? नो मैम। मैम एक आइडिया दूं? जी मैम आपका सैटरडे और संडे को ऑफिस वीकेंड होता है, जी तो मैम वीकेंड में मतलब ज्यादा मतलब टाइम और थोड़ा मॉर्निंग मतलब 8 क्लास वो भी नहीं चलता है, स्ट्रक्चर का भी नहीं चलता है, BIM का भी नहीं चलता है। तो 7 बजे से या 7:30 8 बजे से उस टाइम रख दीजिए सैटरडे संडे। और जो वीकेंड आप दूसरा दिन मतलब I 2 am दिन a अपना girl, वीकेंड ले लीजिए, मंडे actually I ट्यूसडे am a ले girl, लीजिए। for me it's like I have to see the things at home also, like मेरे लिए it's not easy. Sunday is very hectic day for me, and there are lots of people at home, and मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। एंड बाकी टाइम का आप बस बता दो, किसको किसको रात का जो टाइम है, मैं 7 बजे कल कर दूंगी, या 10 बजे अगर करना 10 बजे कर दूंगी। 10 बजे 10 बजे से ठीक है। ठीक है, 10 बजे कल कर देंगे। ओके देन, जून मीन मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन और होगा, तो हम 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ट्यूसडे, शायद ट्यूसडे से हो सकता है 10 बजे से हो जाए। ठीक है, ओके देन, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। Good night, everyone.